सभी को मेरा नमस्कार। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। क्लास 10+2 केमिस्ट्री चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल शेल। What we have learned first, redox reaction. We have studied that oxidation is a process which involves loss of electron and reduction is a process which involves gain of electrons. The reactions which involves both oxidation and reduction are called redox reactions. Electrolyte. An electrolyte is a substance that produces an electrically conducting solution when dissolves in a polar solvent like water. Metallic conductance and electrolytic conductance. Metallic conductance is the electric conductance through metals is called metallic conductance. It is also known as electronic conductance. Electrical conductance through solutions due to an electrolyte due to the movement of ions. Factors. What are factors which affect these electrolytic conductance? First is nature of the solvent. If the solvent is strong, then dissociation is complete and conductance is more. If the electrolyte is weak, then dissociation is incomplete. Hence the इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज लेस। दूसरा फैक्टर है इसमें विस्कोसिटी। हायर द विस्कोसिटी लोअर विल बी द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। उसके पश्चात साइज ऑफ द आयंस आता है इन द इलेक्ट्रोलाइटिक solution. If the size of the ion is more due to solvation, then the electrical conductance of the electrolytic solution decreases. Similarly, concentration. If the concentration is higher, the electrolytic conductance of the solution will be lower. And last है हमारा temperature. As the temperature increases in the solution, the electrolytic conductance of the solution also increases. Ohm law. Ohm law states that when a current is passing through a conductor, the current passes through the conductor is directly proportional to the potential difference. That is, V is proportional to I, or I is proportional to V, or I is equal to V upon R, or V is equal to IR, where R is the resistance of the solution. Next है फिर Colroach law. Colroach law states that at infinite dilution, when the dissociation is complete, each ion makes a definite contribution towards molar conductivity of the electrolyte irrespective of the nature of the other ion with which it is associated. Electrochemical cell or galvanic cell. Electrochemical cell or galvanic cell, the device in which the chemical energy of a spontaneous redox reaction is converted into electrical energy, are called electrochemical cell or galvanic cells. The reaction is zinc plus copper ion giving you zinc 2 positive in aqueous solution and copper solid. Electrolytic cells. The phenomena of chemical changes taking place by the passage of electrical energy from an external source is called electrolysis. The device or cells used to carry out electrolysis are called electrolytic cells. Reaction is 2NaCl, इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया इनको, तो हमारे पास बन गया 2Na plus Cl2.
This is electrolytic cell. Electrochemical cell or galvanic cell. The device in which electrical energy is produced from chemical reactions. ऐसा सेल जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा बनती है केमिकल रिएक्शन से, रासायनिक अभिक्रियाओं से, उसको हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ये हमारे पास गैल्वेनिक सेल है, कॉपर और जिंक रॉड जिसमें है, ये जिंक रॉड है और ये कॉपर रॉड है। जिंक रॉड को हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा हुआ है और कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा हुआ है। इन दोनों सॉल्यूशंस को हमने एक सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट किया हुआ है। सॉल्ट ब्रिज में यहाँ KCl, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है, और भी सॉल्ट होते हैं जो इसमें हम डाल देते हैं अगर अगर और जिलेटिन के सॉल्यूशन में। इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ बोलते हैं और इसको हम रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं। ये कैथोड है और लेफ्ट हैंड साइड में एनोड है। इसमें जो रिएक्शन होता है वो इस तरह से है कि जिंक जो मेटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन बनाती है, और यहाँ पे कॉपर जो आयन्स हैं कॉपर सल्फेट के, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड बना देते हैं जो कॉपर रॉड पे डिपॉजिट हो जाता है, और ओवरऑल रिएक्शन हमारा ये हो जाता है जिंक सॉलिड, जिंक सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन में, कॉपर सॉलिड। तो इसकी हम वर्किंग देखते हैं अभी एक इंटरफेस पे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग हम देख रहे हैं। हमारे पास ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें हमने ये देखिए हमारे पास जिंक और कॉपर का एक गैल्वेनिक शेल है। इसमें एनोड जिंक का है और कैथोड कॉपर का है। अब एनोड को देखो, जिंक एटम्स इस तरह से जिंक रॉड में होते हैं और साथ में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिंक और सल्फेट। दूसरी तरफ हमारा जो कैथोड है इसमें कॉपर रॉड है और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर और सल्फेट अलग अलग डिसोशिएट हो गए हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे जिंक एटम्स किस तरह से जिंक रॉड में है और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक और सल्फेट आयन है। दूसरी तरफ कॉपर एटम्स कॉपर रॉड में है और कॉपर आयंस सल्फेट आयंस सॉल्यूशन में है। बीच में सॉल्ट ब्रिज है जिसमें सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। इसको अगर अगर में बनाया गया। अब देखो, जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू होते हैं जिंक की तरफ से कॉपर रॉड की तरफ को। अब यहाँ देखेंगे जिंक क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रॉड में छोड़ते हैं और सॉल्यूशन में आ रहे हैं जिंक पॉजिटिव आयन बन करके। दूसरी तरफ कॉपर आयंस क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से आकर के रॉड पे आकर जिंक पॉजिटिव आयन के रूप में, कॉपर पॉजिटिव आयन के रूप में डिपॉजिट हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, तो अंदर से सोडियम आयन्स सॉल्यूशन में आ रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ जिंक आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, तो क्लोराइड आयन सॉल्ट ब्रिज से सॉल्यूशन में आ रहे हैं। और ओवरऑल रिएक्शन होता है जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू कॉपर, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस जिंक गिविंग यू Zn2 प्लस प्लस कॉपर। तो ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन है। Now what are the requirements of salt bridge? Now requirement of salt bridge.
Number one, the movability of anions and cations of the electrolyte should be same. सॉल्ट ब्रिज में जो हम सॉल्ट यूज करेंगे उनमें जो केटायन और एनायन होंगे उनकी मोबिलिटी बराबर होनी चाहिए। कम ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी। द आयंस of the electrolyte are not involved in chemical electrochemical change। इसका मतलब है कि जैसे सॉल्ट ब्रिज में जो आयंस होंगे वो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज उनमें ना हो। जैसे सोडियम अगर आयन है तो वो सोडियम मेटल ना बदले, ना बन जाए, और अगर क्लोराइड है तो वो क्लोरीन गैस में ना चेंज हो जाए। तो उनमें इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज नहीं आना चाहिए। थर्ड है द आयंस डू नॉट रिएक्ट केमिकली विद द स्पीसीज ऑफ द सेल। और द साल्ट यूज्ड इन साल्ट ब्रिज आर पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम नाइट्रेट एंड अमोनियम नाइट्रेट। इन साल्ट्स का हम यूज करते हैं। और the saturated solution of these electrolytes, the saturated solution of these electrolytes is prepared in agar-agar or jelly or gelatin। what is agar-agar क्या होता है? natural vegetable gelatin counterpart। what is agar-agar? natural vegetable gelatin counterpart। It is a white semi-translucent material। What is gelatin? A mixture of peptides and proteins produced by partial hydrolysis of collagen। I further repeat, the saturated solution of these electrolytes prepared in agar-agar jelly or gelatin। what is agar-agar? Agar-agar is a natural vegetable gelatin counterpart। it is a white semi-translucent material। and what is gelatin? Gelatin is a mixture of peptides and proteins produced by partial hydrolysis of collagen extracted from skin, bones and connective tissues। Functions of a salt bridge. The salt bridge completes the internal electrical circuit of the cell। Second है the salt bridge maintains the electrical neutrality of two half solutions। तो ये हमारे पास दो इसके फंक्शंस हैं। एक तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को वो मेंटेन करता है, दूसरा इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट है हमारा फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके लिए कुछ कन्वेंशंस हैं। फर्स्ट कन्वेंशन है एनोड के लिए, वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। सेकंड कैथोड, कैथोड के लिए जहां पे रिडक्शन होती है, वेयर रिडक्शन अकर्स, इसको राइट हैंड साइड में हम रखते हैं। सेकंड एनोड ऑफ द सेल, इसमें हम पहले मेटल और सॉलिड फेज को लिखते हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइट को लिखते हैं। कैथोड ऑफ द सेल, इसमें पहले इलेक्ट्रोलाइट को फिर मेटल और सॉलिड फेज को हम लिखते हैं। और ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आती है जिंक से जिंक पॉजिटिव और बीच में सेमीकोलन, या जिंक फिर एक वर्टिकल लाइन जिंक 2 पॉजिटिव यानी कि आयनिक फॉर्म, या जिंक और जिंक की आयनिक फॉर्म बीच में वर्टिकल लाइन और उसकी कंसंट्रेशन साथ में, ये एनोड है।
और कैथोड में क्या लिखेंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव, यानी कि आयनिक फॉर्म, इलेक्ट्रोलाइटिक फॉर्म, और कॉपर सॉलिड, बीच में सेमीकोलन, और इसको हम लिख सकते हैं Cu2 पॉजिटिव और फिर कॉपर सॉलिड, बीच में वर्टिकल लाइन, या इसको लिख सकते हैं हम कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, बीच में वर्टिकल लाइन, और इसकी मोलर कंसंट्रेशन कैथोड के लिए। और शार्ट ब्रिज which separates the two half cell is indicated by two vertical lines like this। ये देखिए हमारे पास अब जिंक से जिंक पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन 2 वर्टिकल लाइंस, these 2 vertical lines are the representation of salt bridge। और फिर जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ है हमारा Cu2 पॉजिटिव, 1 मोलर कंसंट्रेशन इसकी, फिर वर्टिकल लाइन लेके कॉपर। तो ये कन्वेंशन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने की। फिर सेल नोटेशन, हम सेल को किस तरह से डिनोट करते हैं, ये देखिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हमने जिंक से जिंक आयंस बनाए, इसको हमेशा रिएक्टेंट्स है तो बिफोर प्रोडक्ट्स हम इसको लिखते हैं। चेंज इन स्टेट हुआ सॉलिड से लिक्विड में। बीच में जो सॉल्ट ब्रिज है उसको हम 2 वर्टिकल लाइन से ये लिखाई हुई है सॉल्ट ब्रिज के लिए, जंक्शन बिटवीन 2 हाफ सेल्स और सेल ब्रिज। और फिर रिडक्शन हाफ सेल में, पहले रिडक्शन हाफ सेल में क्या होता है, कॉपर आयन से कॉपर सॉलिड बनता है, तो कॉपर आयन पहले, उसकी मोलर कंसंट्रेशन और कॉपर सॉलिड कंसंट्रेशन इन एक्वा सॉल्यूशन, ये लिखते हैं हम। तो ऑक्सीडेशन रिटन बिफोर रिडक्शन, दिस इज द सेल नोटेशन। अब सेल नोटेशन फॉर निकल सिल्वर नाइट्रेट सेल। निकल सिल्वर नाइट्रेट के लिए निकल सॉलिड लिया हमने, वर्टिकल लाइन के बाद निकल का आयन Ni2+ एक्वा सॉल्यूशन में, फिर सॉल्ट ब्रिज के लिए 2 वर्टिकल लाइंस, फिर सिल्वर आयन, एक्वा सॉल्यूशन से सिल्वर सॉलिड बनेगा हमारे पास। सेल नोटेशन ऑफ कॉपर एंड सिल्वर नाइट्रेट सेल, इसमें देखो कॉपर सॉलिड प्लस 2 Ag पॉजिटिव गिविंग यू 2 Ag सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव। इसके लिए जब हम सेल नोटेशन इस तरह से भी लिख सकते हैं, Cu सॉलिड टू Cu2 पॉजिटिव वर्टिकल लाइन, फिर Ag पॉजिटिव वर्टिकल लाइंस, Ag सॉलिड। तो ये हमारे पास सेल नोटेशन फॉर कॉपर एंड सिल्वर नाइट्रेट सेल के लिए है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप between the metal and its ion in the solution is known as electrode potential। मेटल और उसके आयन में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और ये क्यों क्रिएट होता है, जैसे हमने सेल में पढ़ा कि जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रूज करके जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है, क्यों बन रहा था, देखिए क्या होता है कि हमारे पास जिंक सल्फेट सॉल्यूशन था। ओके, ये जो जिंक है इसकी सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा है, इसके अराउंड अबाउट H2O मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेट हो जाते हैं और लगभग 2 to 6 मॉलिक्यूल्स इसके अराउंड हो जाते हैं, जिससे हमारे पास सल्फेट आयंस क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो सल्फेट आयंस अर्ज करते हैं जिंक रॉड से कि जिंक सल्फेट जो
कंसंट्रेशन है जिंक सल्फेट में जिंक की कम हुई उसको पूरा करे, इसलिए जिंक 2 पॉजिटिव बन जाता है। तो ये है, इस तरह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है मेटल और उसके सॉल्यूशन में, जैसे जिंक सल्फेट में, उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इट इज ऑफ 2 टाइप्स, one is oxidation potential and the second is reduction potential. What is oxidation potential? The tendency of an electrode to lose electrons or to get oxidized is called its oxidation potential. What is reduction potential? The tendency of an electrode to gain electron or to get reduced is called its reduction potential. EMF or cell potential. The potential difference between two electrodes of the cell when either no or negligible current is allowed to flow in the circuit. This is the definition of EMF of the cell or cell potential. Potential difference, it is the difference in the electrode potentials of the two electrodes when the cell is sending current through the circuit. This is the definition of potential difference. और ये हमारे पास इक्वेशन होती है कि E of the cell it is equal to electrode potential of right hand side minus electrode potential of left hand side. This becomes the electrode potential of whole cell. ये हमारे पास वर्कशीट है हिमाचल गवर्नमेंट के कार्यक्रम हर घर पाठशाला के तहत हम स्टेट रिसोर्स ग्रुप के पर्सन वर्कशीट बनाते हैं, वीडियोस बना रहे हैं और हिमाचल के सभी बच्चों को इन वीडियोस को ऑनलाइन क्लासेस के तहत दे रहे हैं। तो उसके तहत हमारे पास केमिस्ट्री क्लास की वर्कशीट है जिसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हाट इज साल्ट ब्रिज एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस, ड्रा ए sketch of zinc copper galvanic cell and give brief representation of it. What is the difference between EMF and potential of the cell? आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं चमन लाल, लेक्चरर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांगणा, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश, आप सभी का धन्यवाद करता हूं।